In this video, we are going to see properties on subtraction, multiplication and division for whole numbers. Properties on subtraction for whole number. Number one property is closure property. Whole numbers are not closed under subtraction. Let us understand this line with the help of an example. Suppose here I have taken two whole numbers 2 and 9. ठीक, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 9 from 2 या 2 from 9, इन बोथ द केसेस क्या हमें होल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि इससे पहले वाली प्रॉपर्टी जो एडिशन प्रॉपर्टी थी उसमें हमने जब दो नंबर्स का एडिशन किया था तो हमें जो सम मिल रहा था वो भी होल नंबर मिल रहा था। बट क्या हमें सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐसा ही मिलेगा? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स whether we will get a whole number or not. So in the first case we will get 7 and this 7 is a whole number. ये 7 हमारा whole number है. Alright, but in the second case अगर हम लोग 9 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we will get -7 in this case. This type of addition or subtraction we will learn in our coming chapters or in our next chapter. Alright, and this -7 is not a whole number. ये जो -7 हमें इस केस में मिल रहा है ये whole number नहीं है. So what do we have seen so far? We have seen that after subtracting two whole number, it is not necessary that we will get a whole number. अगर हम लोग दो whole numbers का subtraction कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें एक whole number ही मिले. Alright, so we have understood that whole numbers are not closed under subtraction. Whole numbers जो हैं वो subtraction में closed नहीं है या फिर closure property for subtraction whole number के लिए follow नहीं होती है. Alright, next property is our commutative property. Commutative property addition के लिए क्या थी? Grouping change कर दे ऑर्डर चेंज कर देने से हमारे एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमारे सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता था. उसी तरह क्या अगर हम सब्ट्रैक्शन में भी नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा उस पर इफेक्ट हमारे कुछ पड़ेंगे या नहीं? लेट अस सी with the help of an example. This is suppose I have taken 3 and 2. इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. अगर आप 3 में से 2 को निकालते हैं या फिर 2 में से 3 को निकालते हैं तो क्या आपको both the cases you are getting the same answer? No, you will not get the same answer. So इसीलिए ये दोनों ही केस के बीच में हमें नॉट इक्वल का साइन पुट अप किया है. So in the first case what you will get 1 and in the second case what you will get -1. So ऑर्डर चेंज कर देने से हम सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज कर देने से we will not get the same result. So सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है. Next type of property is associative property. For associative property we take 3 or more than 3 whole numbers. So suppose here I have taken 3 whole numbers 10, 3 and 5. Alright. So according to associative property ग्रुप चेंज कर देने से भी एडिशन में तो हमारे ग्रुप चेंज कर देने से भी हमारे सम पे कोई अफेक्ट नहीं करता था, बट डिफरेंस में ये अफेक्ट करेगा. हमारे आंसर्स ग्रुप चेंज कर देने से हमारे आंसर्स डिफरेंट हो जाएंगे. लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ऑलरेडी आई हैव टेकन 3 होल नंबर्स, so we will subtract them and we will change their groups. In the first case I have taken 3 and 10 and 3 in one bracket, and in the second case what we will do, we will take 3 and 5 in another bracket. So in the first bracket what we will get, after subtracting 3 from 10 we will get 7, and then after getting 7 we will subtract 5 from it, and in the second case what we will do, we will solve the bracket first also.
Here we will get minus 2. Minus 2. Alright. So, in the first case, here what we will get 2. And in the second case, what we will get 10 plus 2, that is 12. In the second case, we will get 12, and then in first case, we are getting 2. So, this, as I have told you earlier, that this type of addition or subtraction we will learn in our next or coming videos. So, अब बस इतना ही समझिए कि both the cases, in both the cases we are not getting the same answer. हमें दोनों ही cases में same answers नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए जो whole numbers है it is also not closed under associative property, क्योंकि group change कर देने से भी हमारा जो answer है वो differ कर जा रहा है. differ कर जा रहा है कि नहीं? In the first case we are getting 2 and in the second case we are getting 12. Alright. Now let us see properties of multiplication for whole numbers. Number one property is closure property. तो for multiplication closure property follow होती है कैसे? For example, जैसे suppose here I have taken 4 and 5, two whole numbers. और जब इन दोनों होल नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो द प्रोडक्ट वी विल गेट दैट इज 20, इट इज ऑल्सो अ होल नंबर. ठीक, तो इट इज फॉलोइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स टू. तो कैसे? अगर आप मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेंट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स हैं तो बोथ द केसेस द प्रोडक्ट विल बी सेम. फॉर एग्जांपल, सपोज हियर आई हैव टेकन 2 and 3 होल नंबर, और अब नेक्स्ट केस में वी आर चेंजिंग इट्स ऑर्डर 2 into 3. So in both the cases what we will get 6 in both the cases. All right. So multiplication is commutative for whole number as their product remains same even if we interchange the position of the numbers. हमने इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी या ऑर्डर चेंज कर दिया, तो इन बोथ द केसेस तब भी हमारे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग सेम. Now next, third property is associative property. Associative property, multiplication for associative property for whole number, it follows. Suppose here I have taken 3 whole numbers 3, 2 and 5. अब हमने इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी. फर्स्ट केस में हमने 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई किया और सेकंड केस में 2 और 5 को पहले मल्टीप्लाई किया. तो ग्रुपिंग चेंज कर देने से भी हमारे प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. जो हमारा प्रोडक्ट होगा बोथ द केसेस, इस केस में और इस केस में, दोनों ही केस में हमारे जो प्रोडक्ट एट द एंड हमें मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन में वो हमारे सेम होंगे. तो here we will get 6 and 5, here we will get 10. 6 5s are 30 and 3 10s are 30. So as you can see in both the cases we are getting 30. So multiplication is associative for whole numbers as the product remains the same even if we interchange the grouping of the numbers. Alright. Now let us see fourth property, that is multiplication property of 0. We all know that after multiplying any number by 0, we get 0 as an answer or as a result. कोई भी नंबर ले लो आपको 0 ही मिलेगा. आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन with 0 is always a 0. Alright. Now next we will see distributive property of multiplication over addition and subtraction. तो यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओवर एडिशन। कैसे? लेट अस तो क्या करेंगे इसमें? हियर दिस 3 इज आउटसाइड द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के बाहर है ये 3। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये इसके इस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये मल्टीप्लाई साइन के साथ अंदर जाएगा। ऑलराइट, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो वी विल गेट 3 into 7 और फिर नेक्स्ट साइन हमारी क्या है? एडिशन की साइन है। अब ये 3 5 के पास जाएगा और 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, तो व्हाट वी विल गेट? 21 दिस साइड एंड 15 दिस साइड। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 36 एज एन आंसर। ऑलराइट, नाउ वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन देखा था, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ऑलराइट, तो ये 5 जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके बाद 8 से। ऑलराइट, तो 5 into 10, इसके बाद 8 से जाने से पहले इसको कौन सी साइन मिल रही है? माइनस की साइन मिल रही है, तो माइनस की साइन हम लोग एज इट इज लगा देंगे। अब इस 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो 5 into 10 are 50 and 5 8s are 40. So what we will get? We will get 10 as an answer. Alright. Now we will see properties on division for whole number. First property, it says कि आप कोई भी दो नंबर का डिवीजन, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी दो होल नंबर का डिवीजन करते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक होल नंबर ही मिले। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन टू होल नंबर 16 and 13, तो 16 and 3, तो 16 और 3 का जब आप डिवीजन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 5.33 समथिंग। तो 5.3 तो ये डेसिमल में आ रहा है, तो ये डेसिमल नंबर हुआ, so it is not a whole number, तो ये whole number नहीं है। ठीक, बट इफ वी सब्ट्रैक्ट 15 by 3, अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 5। तो ये जो 5 हमें इस केस में मिल रहा है, इट इज अ होल नंबर, ये होल नंबर है। राइट, तो दिस केस इज सिमिलर टू सब्ट्रैक्शन। जैसे सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही थी, उसी तरह डिविजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, कोई भी आप होल नंबर को डिवाइड करेंगे तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको एक होल नंबर ही मिले। राइट, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी होल नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1। ऑलराइट, इफ एनी होल नंबर अदर देन 0 के अलावा डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, ये 8 अपने आप को ही डिवाइड कर रहा है, तो एज अ कोशेंट वी विल गेट 1। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्ड प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी नंबर को अदर देन 0 के अलावा आप कोई भी नंबर लेते हो, जैसे सपोज आई हैव टेकन 21 और इस 21 का डिवीजन हमने 1 से कर दिया, इस 21 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर में वही नंबर, वी विल गेट द सेम नंबर। ऑलराइट, one more example, 35 is divided by 1, so we will get 35. Alright, now property number 4, that is
If we divide 0 by any whole number, 0 by any whole number, कोई भी होल नंबर से 0 को आप कोई भी होल नंबर से डिवाइड करते हो तो इस केस में आपको क्वोशिएंट 0 ही मिलेगा। बट अगर आप कोई भी होल नंबर को, इफ यू डिवाइड एनी होल नंबर बाय 0, तो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, ये इस टाइप की डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक, hope you all have understood till here. Practice as much question as you can. Thank you.